I need help with this. Hi, Jia Manjari. Namaste. Namaskar. Pramodji, you're on. I apologize for the delay. It's I think okay. we It's had a okay. very That was an important, exciting session. I was glad to yes, at least hear Madhukeshwarji for just a brief little while yes. and That was very talk enlightening. about yes, and that is more exciting for me, the spiritual, the social aspect than media, because media is all about who speaks the most, right? That is what the general perception is. And Jia, and I'm pretty sure Avadesh, we are all trying to make that change happen, where substantive interventions will take place, hopefully with Bhagavad Kripa in the future. So welcome Jia, welcome on the session. We are already 15 Thanks minutes a lot. late, so I wanted to get started with you. And Avadesh ji, are you there as well? Can I hear you? I think I briefly saw him join. Okay. Okay. Well, let's wait for him to join and then we can begin. But I'll do a brief introduction of Jia Manjari. Very honored to have met you after a long time knowing about you. But sometimes Bhagavad Kripa makes these things happen, right? We are all meeting because of the interesting and very dangerous times we are stepping into. Oh, Avdesh ji says hello too. So let me get started. With both the introductions for our people who are gonna sit and try to understand how media works and what the general perception is. So Jia is an IT consultant, TV panelist. He has been an ambassador of Beti Foundation, which is very, very good to know about the activities and your vision. You have been an accomplished, award-winning professional with 14 years of experience, progressively in a leadership role at Wipro, Spectrum, Reliance, and I'm pretty sure people will want to hear about Beti Foundation, which is working on women empowerment. You would have really liked what Madhukeshwarji was saying. The earlier session was about this Western brand of feminism, right, and how we have a natural response to that within our traditions. So welcome, Jia. And Namaskar and Dhanyavad. Avadesh ji, I'm so excited to have you here. धन्यवाद. In normal times, if my Sanskrit was right, I would have addressed you in Sanskrit, knowing that you're a Sanskrit scholar, you have a master's in Sanskrit, and you gave your bio in Hindi, which मैं पढ़ के मुझे इतना अच्छा लगा कि शुद्ध हिंदी पढ़ने में ना वो जो excitement मिलता है वो English introduction में नहीं मिलता है. And you had a 12-year career. You worked with ZTV, you worked with Sadhana, and your coverage has always been on very interesting topics. I was seeing your timeline on Twitter as well. You were talking about the sattvic nature of the river Ganga. I think you shot that photo, riverbank of Ganga somewhere. I think, is it Kasi that you shot the picture? बिल्कुल काशी You shot it, Kasi. So let's get started, guys. Look, people who are listening in would love to know how this game of media is played, right? Because everybody's favorite sort of punching bag is media. कि media लोग ठीक तरह से नहीं दिखाते हैं, पूरा गलत projection हो जाता है. And without understanding what the media is, it's not a monolith कि एक ऐसा unified entity नहीं है जिसमें हर एक लोग हर एक किस्म के लोग उसी तरह से react करते हैं. खासकर I want to bring you in on the first topic of discussion, and then Manjari will go to your presentation. You made an excellent presentation. Is the way NRIs, OCIs, PIOs जो बाहर रहते हैं प्रवासी, वो इंडियन मीडिया को परसीव करते हैं. वो सोचते हैं कि इंडियन मीडिया इज दूध का धुला, right? They are the most non-corrupt, ऐसे intellectual, मेधावी नेता जो could not make do in politics because ये इतने सत्यवचन बोलते हैं कि वो politics में जम नहीं पाए इसलिए मीडिया में आ गए, right? So I have seen some people come out of that cocoon, that matrix,
courtesy of Rajiv Malhotra and other intellectuals like Rajiv Verma ji, they're beginning to understand कि कोई monolith नहीं है, ये तरह-तरह के लोग होते हैं. So what is your take, Jia? You've appeared on so many TV discussions. What is like ये NRIs का ये भ्रम कब दूर होगा? First of all, I would like to thank all of you for invitation, and this is a really interesting topic because this is about thought seeding and imaging about something in your brain, which is a psychological term. Whatever you think or you get to understand is by three ways. First, what you read, second, what you see, and third, what you listen. So this all media gimmick is created by these kind of smart people who look like a fool, but they are extra intelligent to create a fake image of their karmas, I would say, whatever they are performing. And on international platform also, maligning India's image on the international platform, this is their agenda, and we all of us knows about that these forces are paid or these forces are encouraged by the anti-India bodies, right? So Jia, let us cut to the chase. How does it happen at the practical level? ये जो हम बात करते हैं ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस की, क्या ये इंसेंटिव देती हैं टीवी में आके जाके बात करने की अगेंस्ट इंडिया? डू दे गेट पेड बाय एनजीओस? लाइक हाउ डज इट वर्क? ये स्ट्रक्चर Definitely, कैसा है? definitely, they get paid to write. You just go to few weeks back or like Greta Thunberg, we are aware about, Mhm. and then so many activists, even like there was a singer also, like, so she also got paid for doing the tweets. So these all people are getting paid by these people, anti-India forces. Even in Kashmir, the people who do stone pelting, they are also getting paid. So in media, they are heavily paid in various manners. They have NGO after this government. That is the best thing which has happened, that they have put a check on the NGOs which was getting funded by outside of Indian forces, and they were using that money against India itself. So they are definitely getting scripted documents as a toolkit, as we have just got little time back, that it is a planned narrative which they show on the TV, which they speak, and you can just check that the same narrative is taken by the list of people, right? You will just check that even they do not change बिल्कुल. the text also. So हाँ. it is all planned narrative which they मैंने play. Jia, and correct me if I'm wrong, Avdesh, you work now in ABP and you're doing excellent work and you're one of the rising stars on television networking as well. लेकिन जो जनरल सॉर्ट ऑफ थॉट प्रोसेस होता है कि जर्नलिस्ट को या मीडिया पैनलिस्ट को एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट या टूल किट दिया जाता है जिसके लिए ऑफ कोर्स अ टेलीविजन चैनल विल कॉम्पनसेट फॉर देयर टाइम, but then it's not just as simple as that. उसमें और बहुत से incentives और trips to abroad, trips to different conferences होती हैं. क्या आपने भी ऐसा सुना है और या देखा है ऐसे होते हुए, but you are like, अरे मेरा ही इतना काम होता है, I can't even bother about all that. Have you, like, do you see that? अवधेश जी? देखिए, मैं ईमानदारी से बताऊं, लगभग 12 साल के करियर में संस्थान कोई बुरा नहीं होता. हाँ, ये हम मान सकते हैं कि हमारे बीच में जो कुछ वरिष्ठ हैं या जो समकक्षी पत्रकार हैं जिनका अपना व्यक्तिगत एजेंडा चल रहा है, वो अगर किसी विचारधारा से प्रेरित हो गए, चाहे वो मार्क्सवाद हो, चाहे वो इस्लाम को लेकर उनका हो, या फिर उनकी केवल कमाने की वजह से आए हैं, तो अलग हो सकता है. लेकिन संस्थान के स्तर पर 4-5 बड़े संस्थानों मैंने काम किया. कम से कम कोई संस्थान अपने ऊपर धब्बा ना लगे, इसलिए वो किसी चीज का हिस्सा नहीं बनता. पहले अगर बना भी रहा हो तो वो संभव इसलिए नहीं कि सोशल मीडिया बहुत ज्यादा एक्टिव है. और रही बात जो चलती है, तो फिर मुहिम के स्तर पर कुछ बड़े नाम तो हैं जो अब जाहिर हो गए, उनका नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं है. कि अगर आप भारत में बात करेंगे तो एनडीटीवी क्या कर रहा है वो सबको पता है, और वायर यहाँ पर क्या कर रहा है वो सबको पता है. इसके अलावा अगर आप बाहर जाइए तो न्यूयॉर्क टाइम्स का क्या रहता है वो सबको मालूम है. गल्फ न्यूज की बात कर लीजिए, वॉशिंगटन पोस्ट की बात कर लीजिए. कुछ उदाहरण मैं देना चाहता हूँ. जैसे 9/11 रहा तो 9/11 की जो त्रासदी हुई, जो मृतक थे, उसको न्यूयॉर्क टाइम्स ने किसी भी
मृतक या मृतक के परिजन की फोटो प्रिंट नहीं की। उनका तर्क ये था कि जो उनके पीड़ित के परिजन उनको दुख होगा। लेकिन आप भारत के परिप्रेक्ष्य में देखिए, कोरोना से मौत हुई और शमशान घाट की भी फोटो छापी गई, मृतकों की भी छापी गई, मृतक के परिजनों की छापी गई। तो यहाँ पर वो उनका जो आइडिया है वो काम नहीं करेगा भारत में, लेकिन वहां पर उनको अपने पीड़ितों की चिंता होती है। जो वेस्टर्न कंट्रीज के पेपर्स हैं, खासतौर से प्रमुख पेपर्स जो हैं, वो कभी भी अपने शहीद सैनिकों का जो चेहरा है वो नहीं छापते हैं। वो जो कफिन है वो दिखा दे तो अलग बात है। उसमें भी उनका कहना है ये पीड़ितों की भावनाएं आहत होती है। लेकिन जब वो भारत में आते हैं तो वो भारत में अस्पताल के भीतर की रिपोर्टें करेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका और ब्रिटेन की हम बात कर लें, कोरोना के टाइम में किस तरीके से एजेंडा चला, भारत से कहीं ज्यादा हालत खराब थी अमेरिका की और ब्रिटेन की। लेकिन आप देख लीजिए, भारत में अस्पतालों में घुस घुस कर रिपोर्टिंग की विदेशी जो मीडिया था, जो पश्चिमी मीडिया था, जो एजेंडा चलाता है। लेकिन आपको एक होगी कि अमेरिका या ब्रिटेन में जाकर इन्होंने वहां की बदहाली की रिपोर्टिंग कर दी हो या उसको सामने ला दिया हो। तो ऐसे एजेंडे वाली पत्रकारिता होती है। ऐसे लोग भारत में भी हैं, ऐसे लोग बाहर भी हैं। लेकिन हाँ, संस्थान के स्तर पर अभी तक 12 साल में मैंने कभी महसूस नहीं किया कि कभी, चूंकि मैं एंकर हूं और मेरा अपना डिबेट शो भी है, तो कभी ऐसी दिक्कत आई कि किसी को ये कहा जाए कि हमें इस एजेंडे पे, इस लाइन पे चलना। बल्कि ऐसी ताकतों के खिलाफ जब लड़ाई लड़ी चैनल्स ने, तो आपने सुना होगा कि आजकल एक गोदी मीडिया शब्द बहुत ज्यादा प्रचलित हो गया है, बहुत सामान्य हो गया है। लेकिन ये बौखलाहट है, गोदी मीडिया हो नहीं सकता है, क्योंकि आप माध्यम बन रहे हैं। अगर आप गोदी में बैठ जाएंगे किसी के, तो जनता आपको देखना बंद कर देगी, आप रेटिंग में नीचे चले जाएंगे और आपके सामने बदहाली की स्थिति आ जाएगी। तो कुछ लोग एजेंडा चलाते हैं व्यक्तिगत तौर पर, लेकिन संस्थान के स्तर पर अभी फिलहाल स्थितियां अच्छी है। ओके, सो इस पे जिया, अवधेश जी लेट्स की, कट। हाँ, जी अवधेश जी की इस बोले, बात पे गो मैं हेड, कहना चाहूंगी, सिर्फ पश्चिमी मीडिया ही आकर के यहाँ नहीं कवर कर रहा था। यहाँ पे हमारे इतने सारे रमेश कुमार जैसे लोग भी हैं यहाँ पे हमारे। बिल्कुल, हाँ, मैं नाम लेकर के ही बोलना चाहूंगी, मुझे किसी का भय नहीं है। यहाँ पे इस प्रकार के लोग भी हैं जो कि इस प्रकार के एजेंडा को रन करते हैं और अपने ही लोगों के लाशों के ऊपर बिजनेस करके और अपने ही शहीदों, अपने ही देश के लोगों को शहीद करके वो पैसे कमाने की पूरी रणनीति पे चलते हैं। और वो सारा पैसा वो बाहर से ऑर्गेनाइज्ड वे में उनके पास आता है। आप देखें, बरखा दत्त जैसे लोग शमशान के बाहर जाकर के और एक टीन के डब्बे पे लैपटॉप रख करके अपने आप को एक सफल पत्रकार दिखाते हैं अंतरराष्ट्रीय पटल पे, और पाकिस्तानी मीडिया वहां से बैठ करके कहता है कि यहाँ अरुंधति रॉय और बरखा दत्त जैसे अच्छे पत्रकार भी हैं। तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है, ये सबको सर्वज्ञात है। क्यों आ रहा है और किस एजेंडा के थ्रू आ रहा है, और वो क्यों इतना खुल के बोल पा रहे हैं। कोई भी व्यक्ति बिना संरक्षण के काम नहीं कर सकता, बिना आर्थिक सहायता के काम नहीं कर सकता जब वो बैटल फील्ड में होता है किसी भी प्रकार की, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो राजनैतिक हो, और चाहे वो मीडिया के थ्रू। और क्या जिया, और दोनों के लिए ये सवाल है, एंड आई विल कट टू द प्रेजेंटेशन आल्सो। क्या ये एक तरह से जो एजेंडा ड्रिवन है, जो जिसको हम कहेंगे ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस, राइट, ये टुकड़े टुकड़े गैंग, ये सब एक ही कन्फ्लुएंस में आते हैं कि इनको सिर्फ इंडिया को पीछे रखना है, एंड इनका ये क्लियर एजेंडा है, वेदर वे से हिंदुत्व, हिंदुइज्म, इंडिया, धर्म कुछ भी हो जाए, उनके लिए तो हम सब एक ही हैं, उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पॉलिटिकल डिफरेंशिएशन हम लोगों में होगा बिकॉज वी आर ए डेमोक्रेटिक कंट्री, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन तो होना ही है। लेकिन क्यों इंडिया इतना गुड बॉय का एटीट्यूड लेके मीन हर एक जगह पे जाता है? ये सी, जिस तरह से हमारा पुलवामा में ट्रेजेडी हुआ, फिर इंडिया ने एयरफोर्स भेजा ना बालाकोट में, राइट, उसी तरह से जिस तरह से गालवान में हुआ, इंडियन सोल्जर्स वेंट डाउन फाइटिंग, लास्ट मिनट तक लड़ के मर गए सभी, राइट। So when you're openly saying this against Pakistan, when you're openly doing action against China, तो विश्व में जिसका नैरेटिव ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन कंट्रोल करता है, मेन स्ट्रीम मीडिया कंट्रोल करता है, तो क्यों इंडिया इतना जोर से इनको कह नहीं पाता है? ये सिर्फ ये वेस्टर्न लोगों, गोरों से वैलिडेशन के लिए क्यों इतना तरस जाते हैं? व्हाट इज दिस थिंग एटीट्यूड? दो लोगों को तो आइडेंटिफाई कर दिया ना, चाइना एंड पाकिस्तान। जी गो अहेड। जी बिल्कुल, देखिए बात ऐसी है कि कितने सालों से, कितने वर्षों से जो हमें सिखाया गया, वो उन पद्धतियों पे हम चलते आ रहे हैं। ब्रिटिशर्स के समय से ही हमारा अधिकार जो है, कहने के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन आप अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच पे जा करके ये बोलना शुरू कर दें
कि जो कास्टिज्म का नैरेटिव है ये हमारे यहाँ था ही नहीं। ये कास्टिज्म का नैरेटिव आया है मुगलों के समय से। हमारे यहाँ पे सभी लोग यज्ञोपवीत करते थे, सभी लोग पूजा करते थे। ये जो डिफरेंशिएशन क्रिएट किया गया, यदि मैं कास्ट की बात करूं और स्पेसिफिक कास्ट की बात करूं, तो भ्रष्टा उठाने जैसा कोई भी कॉन्सेप्ट हमारे भारत में नहीं था। आज भी गांव के अंदर जाएं तो वहां पे भी यदि कोई शौच के लिए जाता है तो वो अपने घर से बाहर खेत में जाता है या इस प्रकार के एनवायरमेंट में जाता है जिससे घर में शौचालय नहीं होता है। किंतु अरब कंट्रीज के अंदर एक कॉन्सेप्ट चलता था वेयर दे यूज्ड टू कीप अ बॉक्स विद अ मड एंड देन दे यूज्ड टू डू दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज, और उसको बाद में साफ किया जाता था। वो ये कार्य जब ये लेकर के आए भारत के अंदर, अपनी जीवन शैली को वो लेकर के आए, तो उन्होंने देखा कि भारत में जिन लोगों को उन्होंने गुलाम बनाया उनसे उन्होंने ये मलिन काम करवाए, और उसके बाद में उन लोगों ने जब अपने जनेऊ त्यागे, जब अपने यज्ञोपवीत त्यागे, उनको भंग किया, तो उनको उनकी कास्ट बना दी भंगी। इस विषय के बारे में हमारे यूथ को आज की डेट में कुछ नहीं पता है। इसलिए जब हमें अपने ही विषय में अच्छे से नहीं पता है तो हम इन सब बातों के अंदर आ जाते हैं कि हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम है। हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम कभी था ही नहीं, हमारे यहाँ कर्म सिस्टम रहा है हमेशा। तो इस प्रकार के जो नैरेटिव्स क्रिएट किए जाते हैं वो इसी प्रकार से किए जाते हैं। हमको मिस प्रेजेंट तब कोई कर सकता है जब हम अपने आप को सेल्फ प्रेजेंट अच्छे से नहीं करते। वी आर नॉट रिप्रेजेंटिंग आवरसेल्फ, वी आर नॉट स्पीकिंग अगेंस्ट, वी आर रिएक्टिव। जब वो कुछ कहते हैं तब हम कुछ कहते हैं, हम प्रोएक्टिव क्यों नहीं? what are your thoughts अवधेश जी? क्या हम हमारे में ये जो हम्बल नेचर है, हम किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहते, ये एम्बेडेड है? बट ये एम्बेडेड इतना होता तो हम पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देते हैं, चाइना को मुंह तोड़ जवाब देते हैं, राइट? वी डोंट मिन्स आवर वर्ड्स, हम हमारी जो मन की बात है कह देते हैं ना। तो ये गोरों के सामने ये क्यों इतना हाथ कांपते हैं इनके? हाथ इसलिए कांपते ना, कभी भी कोई व्यक्ति अपने अपने से नहीं हारता, वो अपनों की वजह से हारता है। हमारे यहाँ तमाम ऐसे लोग हैं। आप एक कुंभ का उदाहरण लीजिए। कुंभ एक ऐसा आयोजन है कि दुनिया में किसी को निमंत्रण उसका नहीं जाता है, लोग अपने आप खींचे चले जाते हैं। इसमें अंग्रेजी शासन को बड़ी दिक्कत होती थी कि एक छोटा सा पंचांग है, उससे एक तिथि निकलती है और उसके बाद पूरा देश उमड़ पड़ता है। ये बड़ा संकट का मामला है। दिक्कत ये है कि हरिद्वार में जब कुंभ हुआ तो उसका वैभव दिखाया गया, उस पर बातें हुई परंपराओं पर कि किस तरीके से चीजें चली। लेकिन आप देख लीजिए, कुछ वेस्टर्न मीडिया और कुछ हमारे भारत के जो पत्रकार थे, उनका फोकस इस पर नहीं था कि इतनी बड़ी हमारी परंपरा है और इतना बड़ा समायोजन है जहां पर जाति धर्म पंथ कुछ भी नहीं देखा जाता। वो ये गिनते रहे कि सामाजिक समरसता के बीच बाबा बिना कपड़ों के क्यों चले आ रहे ना। आज भी उस पर बात होती है। वो ये फैलाने में लगे रहे कि बाबा आए हैं तो कोरोना फैल जाएगा। मतलब मरकज कोरोना नहीं फैलाएगा, कोई बड़े बड़े आयोजन हो जाए तो कोरोना नहीं फैलेगा, किसान आंदोलन में लोग लाखों की संख्या में जुट जाएं तो वो कोरोना नहीं होगा। लेकिन चूंकि सनातन धर्म से जुड़ा सबसे बड़ा आयोजन कुंभ है, तो वहां पर विदेशी मीडिया को भी कोरोना दिखने लगता है और हमारे भारत के कुछ लोग उनको भी कोरोना दिखने लगता है। दो महत्वपूर्ण चीज और हम बात करना चाहते हैं। 2010 में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सली हमला हुआ, 75 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए, पूरी बस उड़ा दी गई थी। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में तो खुशी के मारे वहां खुशियां मनाई गई कि ये बहुत अच्छा हुआ, मार्क्सवाद की जीत हुई और जो सामाजिक समरसता का सिद्धांत है वो जीत गया। सोचिए कि इतनी बड़ी घटना हुई लेकिन मीडिया से वो खबर गायब रही। जो बड़े बड़े तथाकथित बहुत अच्छे पत्रकार बनते हैं वो मौन रहे, क्योंकि उनको अगर वो बोलते तो फिर उनका जो नैरेटिव था वहां पर डिस्टर्ब होता। आप देख लीजिए, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह के नारे लगे जब, तो किस तरीके की स्थितियां रही। तमाम ऐसे पत्रकार थे। जब मैं जी न्यूज का उदाहरण यहाँ पर नाम लेना चाहूंगा, जी न्यूज ने डंके की चोट पर वो वीडियो दिखाया कि किस तरीके से वहां पर भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगे। वही एक वक्त था जब वहां से गोदी मीडिया का जो शब्द था एकदम सुछाल दिया गया जी के लिए कि ये गड़बड़ कर रहे हैं। आप सोचिए, भारत में रहकर भारत के विश्वविद्यालय में टुकड़े के नारे लग रहे हैं और अगर आप दिखाते हैं तो गोदी मीडिया हो जाते हैं। बॉलीवुड की बात आ जाती है, दीपिका पादुकोण वहां पर पहुंच जाती है समर्थन में ऐसे नारे लगाने वालों के खिलाफ। तो यही वजह है कि अगर हम लोग सच दिखाएं तो कोई बाहरी व्यक्ति अगर हमारा विरोध करे तो हम लड़ लेंगे, लेकिन अंदर के लोग ये अगर चार खड़े होकर आपके खिलाफ बोलने लगेंगे तो फिर एक कंफ्यूजन क्रिएट होगा और शायद उसी कंफ्यूजन का फायदा बाहरी लोग उठा लेते हैं और उनको कहने का मौका मिल जाता है कि हम तो गलत हो सकते हैं, लेकिन जो आपके भीतर है क्या वो भी गलत है। और यही एक संकट है जो बड़ी मुसीबत कर रहा है। आप छत्तीसगढ़ में जाइए, वहां पर नक्सलवाद बड़ी समस्या है, लेकिन जैसे ही वहां पर कोई एनकाउंटर करती है पुलिस या सीआरपीएफ,
तो हमारे देश के बड़े राजनीतिक दल और तथाकथित समाज सेवी, मैं तथाकथित इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि समाज सेवी है नहीं, वो वहां पर अपना एजेंडा चलाने जाते हैं, ये सारे लोग खड़े हो जाते हैं और अपनी आंतरिक सुरक्षा में शहीद होने वाला जवान सवालों के घेरे में हो जाता है, जांच बढ़ जाती है। तो इसलिए हम लोग के हाथ कांप जाते हैं। हम लोग मजबूत तो हैं, लेकिन जब अपने भीतर ही छुरा घोंपने वाले बैठे हैं, चाहे वो सियासत हो, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे वो मीडिया हो, तो फिर तो हमें मुश्किल आएगी। तो यही वजह है कि हमें गोरों की तरफ देखना पड़ जाता है कि अब वो क्या कहेंगे आगे। देखिए, अवधेश हम जी, बौद्धिक आपने रूप से बहुत गुलाम सही हो कहा, चुके हैं। बहुत बहुत सही कहा। बौद्धिक स्तर पे हम गुलामी के उस दौर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जिया, आपने जो प्रेजेंटेशन भेजा, आई जस्ट वांट टू शेयर द स्क्रीन, लेट अस गो थ्रू दैट प्रेजेंटेशन थोड़ा, इफ वी कैन ऑफर एनी सॉल्यूशन, क्योंकि बातें बहुत हो चुकी, राइट? हमारे पेशेंस का सबने फायदा उठाया। नाउ लेट अस टॉक इफ वी कैन मूव टुवर्ड्स एनी सॉल्यूशन। तो लेट मी शेयर द स्क्रीन। ओके, आप स्क्रीन देख सकते हैं? You're जी। able to see my screen? Okay, perfect. So why don't you run down this presentation, Jia, and then मैं अवधेश जी से भी पूछूंगा कि उनका क्या solution होगा इसका। जी, क्योंकि भाषा इंग्लिश यहाँ पे यूज हुई है, तो जिनको इंग्लिश भाषा आती है वो पढ़ सकते हैं। इसलिए मैं हिंदी में बोलना बिल्कुल चाहूंगी जिससे सभी तक पहुंच बिल्कुल, पाए ये चीजें। हाँ जी, तो जो एक आपने बोला कि इंडिया एक गुड बॉय इमेज क्यों कैरी करता है, देखिए पहली बात तो हमें शुरू से यही सिखाया जाता है। प्लीज गो टू द प्रेजेंटेशन मोड, somebody is saying just it's not. Can you share your screen? Just a second, I'll be doing. Or I can do it, मैं भी कर सकता हूँ, you just let me know. I don't think so I have a right to. Okay, okay, so let me share the screen. Okay, can you see it? Yes. ठीक है. Let's go to the third slide, the perception about Indian media in the minds of Pravasis and NRIs. जी, देखिए बाहर जो व्यक्ति रह रहा है विदेश में, मैं भी कई बार भ्रमण पे आती हूँ और बहुत ज्यादा समय रह चुकी हूँ कई कंट्रीज में। तो इतना बिजी शेड्यूल होता है कि हम एनालिसिस का टाइम हमारे पास नहीं होता वहां पे, और हम जो मीडिया को देखते हैं वो यही देखते हैं कि वो क्या दिखा रहा है, उसके बैकग्राउंड पे चीजें क्या चल रही हैं उसको देखने समझने का हमारे पास में ना समय होता है, ना विवेक उस समय होता है। क्योंकि भारत पे रहते हुए जो भी चीजें हम देख रहे हैं, जो चीजें हम समझ रहे हैं, वो वहाँ पे बहुत डिफरेंट तरीके से काम करती है। यहाँ का वर्किंग कल्चर, वहाँ का वर्किंग कल्चर बहुत डिफरेंट। तो एनआरआई जो यहाँ से जाते हैं वो सोचते हैं जो दिखाया जा रहा है वो पूर्णतः सत्य है। नैरेटिव बिल्डिंग जैसी चीजें वो बहुत बाद में समझ पाते हैं। जैसे हमारी एज में आते आते, अगर आप मेरी बात करें तो आज 30 वर्ष की उम्र से ऊपर मेरी उम्र हो चुकी है, और अब मैं 25 साल के बाद में मुझे समझ में आया कि नैरेटिव बिल्डिंग भी कोई चीज होती है। तब तक मुझे लगता था जो दिख रहा है मुझे वो सत्य दिख रहा है, जो दिखाया जा रहा है वो सत्य दिखाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है सत्य बताया जा रहा है। तो उनको यही लगता है कि जो भी हमें दिखाया जा रहा है वो सच है। सो उस परसेप्शन को पहली बात उन्हें क्लियर करना होगा, ठीक है। और ऐसे इन्फ्लुएंशियल लोग ढूंढे जाते हैं झूठ को प्रोजेक्ट करने के लिए, और इतनी बार झूठ बोला जाता है कि जितनी बार झूठ बोला जाएगा उतनी बार वो सत्य लगने लगेगा। यदि आपको, ये एक साइकोलॉजिकल इमेजिंग है कि आपको, यदि मैं सुबह से शाम तक एक बात को बोलते रहूं तो कहीं ना कहीं वो थॉट प्रोसेस में आपके जाकर के जम जाएगा और आप उसको सत्य मानने लगेंगे। जिस प्रकार से ये बोला जाता है कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी, ऐसा नहीं है। लेकिन हमें पढ़ाया इतना गया है कि अब हमारे बच्चे वही पढ़ने लगे हैं और वही मानने लगे हैं काफी स्तर तक। तो भारत सदैव रहा था और वास्को डिगामा वहां पे नाव के थ्रू आ गए और वो दिखा दिया, क्योंकि उनके लिए उस समय भारत की खोज हुई, इसलिए वो भारत की खोज हुई उनके लिए। हमारे लिए तो भारत पहले से ही था, राइट। तो ये सारी चीजें हैं।
And here it is, I have mentioned public diplomacy in the tool of deal with the issues. तो आप देखिए public diplomacy जो है and communicate directly with the citizens in simple term. तो मैं इसीलिए हिंदी भाषा का प्रयोग भी कर रही हूँ कि हमारे यहाँ पे जितनी आप देखेंगे जितने भी लेफ्टिस्ट मीडिया है वो इतने जबरदस्त एक्सपर्टाइजेशन ऑन द लैंग्वेजेस रखते हैं और इतना टर्मोइड करके चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं कि आम आदमी को जिस्ट ऑफ द इशू समझ में ही नहीं आए, वो आधे समय तो समझने में ही लगा देता है कि क्या चल रहा है। आउट ऑफ दैट इशू उसको जो चीजें हाईलाइट करनी होती हैं, जैसे कि जेएनयू की हम बात कर रहे थे थोड़े दिन पहले, अभी कुछ घंटों पहले, तो उसके अंदर देखिए आप जेएनयू के अंदर एक चीज की गई, महिषासुर दिवस, इस प्रकार से इन चीजों को प्रेजेंट किया जाता है। महिषासुर को दिखाया गया दलित, दलित का सबसे बड़ा अर्थ ये है कि जिसका दलन हुआ हो, दलन मतलब होते हैं जिसको दबाया गया हो, दमन होने वाला। सो इस प्रकार की चीजें हमारे मीडिया के थ्रू क्रिएट की जाती हैं और बाहर बैठा हुआ जो एनआरआई है वो देखता है, वो सोचता है कि नहीं नहीं बिल्कुल ये तो बात सत्य है कि कोई भील व्यक्ति था और उसके साथ जो इतना बुरा प्रकार का हुआ उसको दबाया गया, क्योंकि उसके पास समय नहीं है अपना ही शास्त्र पढ़ने का और हमारे यहाँ अनुमति नहीं है अपने ही शास्त्र पढ़ाने की। ये भारत की सबसे बड़ी कमी रही है और हम चाहे कितनी भी बातें कर लें ये तब तक नहीं बदलेगा जब तक कि हम अपने शास्त्र नहीं पढ़ेंगे, हम अपनी आइडेंटिटी को खुद नहीं जानेंगे। अब मैं सॉल्यूशंस पे आती हूँ। देखिए परेशानियां सबको मालूम है क्या चल रही हैं, मीडिया कैसे चलित होता है, मीडिया में 3 सेगमेंट होते हैं, राइट राइट मीडिया में if we want to go at the slide ways, so it will be literally really long and I guess we have short time थोड़ा सा, तो राइट सो मैं सीधे इसके ऊपर आऊंगी कि अब हमारे पास सॉल्यूशन क्या है इस चीज को ब्रेक करने के लिए। आप देखें वायर जैसी चीजें हो गई, क्विंट जैसी जो चैनल्स जो छोटी छोटी आइडेंटिटी इन्होंने क्रिएट की, ये क्या करते हैं कि ये समय अनुसार नैरेटिव बिल्ड करके न्यूज दिखाते हैं और कुछ समय बाद उस न्यूज को हटा देते हैं, और जब जब तक ये आता है कि ये फैक्चुअल है, एक्चुअल है, उस समय तक वो न्यूज हट चुकी होती है उस पोर्टल से और ये कह दिया जाता है कि ये फैक्चुअल न्यूज थी, सॉरी हाँ राइट, तो इसको ये बता दिया जाता है कि ये नहीं, दिस इज नॉट फैक्ट चेक के अंदर ये आ जाता है कि नहीं ये तो नैरेटिव है ही नहीं, ये तो हमने कुछ लिखा ही नहीं इस प्रकार से। तो हमें भी हम क्यों नहीं करते इस प्रकार की चीजें, हमें भी अपनी मीडिया के अंदर 3 सेगमेंट ऑफ मीडिया निकाल करके हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। व्हाई वी डू नॉट टॉक अबाउट दैट हाउ इस्लामिस्ट has taken over many countries। आज जिस समय बात होनी चाहिए तालिबान डिसमेंटल होने की, वहां पे बात होती है हिंदुइज्म डिसमेंटल होने की। मैं पूछना चाहूंगी कि कौन सा ऐसा देश है जहां पर के जाकर के हमने आतंकी हमले किए हों, हम जहां गए हैं वहां उस देश को, उस राष्ट्र को, उस भूमि को हमने समृद्ध किया है अपने कार्य कौशल से, अपनी प्रतिभाओं से और यहाँ तक आर्थिक रूप से। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि हम मुखर होकर के बात नहीं करते, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा मुखर होकर बोलना। ये भय हमें इसी प्रकार से मार देगा यदि हम निर्भीक होकर के बात करना नहीं सीखेंगे। हमें हर बात को खुल करके बोलना चाहिए, मृत्यु तो एक दिन आनी ही है सबको, तो इसलिए इसका भय ना रखते हुए कि हमारा क्या होगा, हमें अपना एक पाथ बनाना चाहिए। बहुत अच्छी चीज हुई है इस गवर्नमेंट में कि आत्मनिर्भर भारत की जो बात की गई है, आप देखें कि जो भी जॉब्स हैं वो कितनी हैं, हाउ मेनी जॉब्स आर देयर। अगर गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें तो 2% ऑफ द कंप्लीट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वी आर प्रोवाइडिंग जॉब्स, लेकिन हमारा जो बेसिक बिजनेस छीन लिया गया, वो कैसे छीना गया, आपको दिखाया जाता है, हमारे बच्चों को दिखाया जाता है कि आप पढ़िए लिखिए, अपना कोई बिजनेस मत करिए, डू नॉट बिकम एन इंडिपेंडेंट पर्सन और यू हैव योर ओन बिजनेस, in spite of that you become a slave, you get attain knowledge and work for us, we will be paying you and you will be working as per our guidance and instructions। तो हम गुलामी से बाहर आ ही नहीं सकते जब तक कि हम अपनी इच्छा से काम नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात कि इसको हम ब्रेक कैसे करें, बहुत सारे लोगों के यहाँ पे मैसेजेस में मैं देख रही हूँ कि अब हमें सॉल्यूशंस पे बात करनी चाहिए। सॉल्यूशन यही है कि हमें उनके ही वे में उनको अटैक करना चाहिए, जिस प्रकार से वो बातें करते हैं मीडिया के अंदर, हमें उस प्रकार के मीडिया सेगमेंट्स के विषय पे बात करना चाहिए। why we have to be always defensive and why we have to
why we do not before we come to that, I'm just asking our audience to compile their questions. Let me ask the same question to Avdesh ji कि ये जो डिफेंसिव एटीट्यूड है उसको तो देखिए बहुत से ऐसे टीवी चैनल्स हैं और एंकर्स हैं जो बड़े एग्रेसिवली बात करते हैं, राइट? बट जो आउटवर्ड लेंस है अभी तक इंडिया ने डेवलप नहीं किया, क्योंकि उसमें बहुत इन्वेस्टमेंट करना जरूरी होता है। बहुत से ग्लोबल लेवल पे चैनल्स को ऑपरेट करना, उसको स्टाफ करना, करस्पॉन्डेंट्स को हर एक जगह पे बेस करना बहुत खर्चा वाला मामला है, जो अभी तक जो पेट्रियोटिक लेंस से काम करने वाले टेलीविजन चैनल्स को शायद वो मार्केट सेगमेंट इतना अट्रैक्टिव नहीं लगा हो, या व्हाटएवर रीजन उन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है। एक दो चैनल्स हम भी देखते हैं, बट बहुत छोटा सा प्रयास है। तो आपको क्या लगता है सोल्यूशन कैसा होना चाहिए अवधेश जी? बिल्कुल, देखिए पहले तो डिफेंसिव वाले मोड पे आते हैं। डिफेंसिव रहना ये वक्त की जरूरत भी है, क्योंकि जो हमारा अनुच्छेद 19 है जिसमें हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली है, उसमें साफ तौर से कहा है कि हम अभिव्यक्त तो हम सब कर सकते हैं, लेकिन तब तक जब तक कि वो कानून व्यवस्था के लिए खतरा ना हो जाए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में दरार ना आ जाए, उससे कोई दिक्कत ना आ जाए। अगर कोई हमारे समाज के बीच बहक जाता है, उसकी मानसिकता आक्रामक है, उसकी मानसिकता आपराधिक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम जवाब देने के लिए हम भी आपराधिक हो जाएंगे, या वो अगर वो गाली दे रहे हैं तो हम भी गाली देंगे। हाँ, इतना जरूर है कि हमें उन चीजों को तर्क के साथ काउंटर करना पड़ेगा। जैसे जिया जी ने अभी बोला, मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि एक पक्ष तो घटना का आता है, लेकिन दूसरा पक्ष छिप जाता है, दूसरे पक्ष को दिखाने की हिम्मत लानी पड़ेगी। लेकिन खतरा ये है कि दूसरा पक्ष आप जैसे ही लाएंगे वैसे ही सांप्रदायिक शक्तियां बहुत तेजी से सामने आती हैं। जैसा कि जिया जी ने बताया कि महिषासुर के वध का दिवस मनाया जाता है, लेकिन उसको लेकर जब बवाल हुआ तो तमाम राजनीतिक दल ही बैकफुट पर आए। बवाल इसलिए हुआ क्योंकि वध का तो मनाना तक ठीक है, आपका बड़ी आस्था का मना लीजिए वध दिवस, लेकिन उसमें यह भी दावा किया गया कि जो दुर्गा थी वो दरअसल देवी ना होकर वैश्या थी। 9 दिन तक वो महिषासुर के साथ रहीं और उसके बाद उन्होंने वध किया। तो सोचिए, आपके देवी देवताओं को ऐसा कहा जा रहा है और डिफेंसिव मोड में रहेंगे तो आप हिंदुत्व बचा नहीं सकते हैं। फिर इस तरीके की शक्तियां देश और विदेश में आपके खिलाफ काम करें कि उन्हें पता चल चुका है कि आप इतने डिफेंसिव हो गए हैं कि आपको अपने अस्तित्व का विभान नहीं है। दूसरा संकट जो आता है कि आप अगर कोई घटना कहीं पर हो जाए, अगर दो समुदाय आपस में लड़ गए, मॉब लिंचिंग का आप उदाहरण ले लीजिए, अगर किसी हिंदू की लिंचिंग हो गई है तब तो वो खबर नहीं है, सत्य है, ये बहुत बड़ा मामला हो जाए तो अलग बात है। लेकिन अगर कहीं दुर्भाग्य से किसी मुस्लिम की लिंचिंग हो गई तो वो नेशनल मीडिया पर और इंटरनेशनल मीडिया पर आ जाती है, वो बहुत बड़ी खबर हो जाती है। तो हमें इस सिलेक्शन से बचना होगा। दूसरा, राष्ट्रवाद की जब आप बात करते हैं तो आपको ऐसा पेश किया जाता है कि जैसे आप कितने बड़े सांप्रदायिक है, जबकि अहम राष्ट्रीय संगमनी चिकित्सा प्रथमा यज्ञा नाम कहा गया है कि जो राष्ट्र है उसको समृद्धि देने वाली जो शक्ति है, उसके यज्ञ में हम प्रथम पशु बने, ये हमारा कर्तव्य है। तो लोगों को ये भी समझाना पड़ेगा कि जो राष्ट्र है वो नहीं है जो पश्चिमी लोग या जो मार्क्सवादी लोग या जो इस्लामी लोग कह देते हैं, जो उन्होंने परिभाषा दे दी। हमें अपने बच्चों को पढ़ाना होगा, बताना होगा हमारी जनरेशन को कि राष्ट्र की परिभाषा क्या है। कुछ वो आ रहा है, वेबिनार आ रहा है, बताया कि नैरेटिव क्रिएट होते हैं। आप देख लीजिए, हिंदुइज्म कहा जाता है, हम हिंदुत्व में तो आ जाएंगे। त्व जो प्रत्यय है, त्व प्रत्यय का मतलब हुआ है कि किसी चीज का अस्तित्व हम बता रहे हैं, तो हिंदू का अस्तित्व है तो हिंदू। लेकिन जब हम हिंदू कह देते हैं तो हम अपनी ही इज्म का मतलब में देखिए, इज्म का मतलब ऐसा सिद्धांत जो सप्रेसिव हो, जो किसी विचारधारा को बढ़ाता हो, जो दबाने की बात करता हो, जो अपने आप को सर्वोच्च बताता हो। तो हिंदू धर्म में तो ऐसा है नहीं, तो सनातन परंपरा है। तो हमें शब्दों के खेल से भी बचना होगा। हिंदुत्व तो हो सकता है लेकिन हिंदुइज्म नहीं है, क्योंकि इज्म तमाम चीजें हो सकती है। जो पंथ है, हमारा पंथ नहीं, हमारी तो सनातन परंपरा चली यार, उससे हमें बचना होगा। और सॉल्यूशन इसका यही है कि केवल जो मीडिया है, अभी 17-18 साल का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हुआ है, प्रिंट मीडिया जो भी हुआ, लेकिन हमें सोशल मीडिया पर जाना होगा। आप देखिए, जो मार्क्सवादी लोग हैं उन्होंने अपना एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गढ़ लिया। जो बहुजन, जो दलित की बात करते हैं, उन्होंने बहुजन मीडिया बना लिया। तमाम अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर आ चुके हैं। आजकल पॉडकास्ट है, आप देख लीजिए, ऐसे पॉडकास्ट पर जहर उगले जा रहे हैं जिनकी कोई सीमा नहीं है। तो हमें हर प्लेटफॉर्म पर जाकर बड़े ही शालीनता के साथ, अपने समझ के साथ उन चीजों को काटना होगा, उन तथ्यों का। जैसे कि अपने यहाँ कहा गया कि अयम निज परोविति गणना लोकचेत साम उदार चरिता नाम तू वसुदेव कुटुंब, मतलब वो हमारा है नहीं है,
हम उदार चरित्र तभी हैं जब वसुधैव कुटुंब, पूरा परिवार हमारा, जो धरती हमारा परिवार है। लेकिन हमें कबीर का दोहा भी याद रखना पड़ेगा कि अति का भला न बोलना, अति की भली न धूप, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूक। मतलब कि कोई अगर लगातार बोलता जा रहा है और हम चुप्पी साध कर रखें तो अति कहीं भी अच्छी नहीं होती। तो हम अति में फंस गए हैं, उस अति से बाहर निकलना होगा, ये इसका समाधान है। जो तमाम डिजाइनर पत्रकार जिनको हम बोलते हैं, क्योंकि गोदी मीडिया के खिलाफ एक डिजाइनर पत्रकार का शब्द आया है, इनको समाज के बीच में एक्सपोज करना होगा हमें, और इन तमाम तथ्यों पर सवाल पूछने होंगे, लोगों को समझाना होगा। और इसमें जो अभी जो कार्यक्रम हम कर रहे हैं, इसको और बड़े लेवल पर हमें बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो वर्ग है वो बड़ा सक्रिय है और इतनी जल्दी नैरेटिव बढ़ता है कि हम लोग समझ भी नहीं पाते। तो हमें लेकिन अवधेश जी, एक मैं बात करेक्ट करूं आपको, एक्सीलेंट पॉइंट। लेकिन उनका टेम्पलेट बड़ा सेट होता है, उनके टेम्पलेट में कोई डिफरेंशिएशन नहीं होती है। उनकी जो टूल किट होती है ना, वो बार बार रिपीट होती है। यानी हमको सिर्फ एक ढाल बन के एक आर्मर को तैयार करके उसको फ्लोट करना है। जिस तरह से मैं बार बार यही कहता हूं, इंडिया को पाकिस्तान से कैसे डील करना है पता है, चीन से कैसे डील करना है पता है, बिकॉज ये एक ही तरह से उनका ऑफेंसिव ये पोजीशनिंग होता है। लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड को जो प्रोएक्टिवली हमको उनकी इसको अटैकिंग मोड पे जाना है, वो भी पता है, सिर्फ हमने इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया, क्योंकि वो जो थिंक टैंक है, जो थॉट प्रोसेस है, उसको हमने स्ट्रक्चर नहीं दिया हुआ है। बट कंटिन्यू, एक्सीलेंट पॉइंट जी। देखिए, जैसा कि एक विश्व में धारणा बनाई जाती है कि भारत में जाति प्रथा बहुत है, जो निम्न जातियां, जिनको निम्न कह दिया, निम्न माना नहीं अपने गया, लेकिन कहा गया कि उनको बहुत दबाया गया। आप देख लिए, रामायण ऐसा महाकाव्य है जो पूरे विश्व में बड़े सम्मान के साथ पढ़ा जाता है। अगर निचली जातियों को दबाया गया होता, या फिर हम किसी जीव मात्र के प्रति दया नहीं होती, एक बहुत उसमें प्रसिद्ध श्लोक है कि वाल्मीकि लिखते हैं कि मां निषाद प्रतिष्ठान तुम गम शाश्वती समा यत क्रौंच मिथुना एकम वधे कामोहितम। दो क्रौंच के जोड़े थे, वो आपस में उनका जो भी चल रहा था प्रेम, उसमें एक बहेली आया, उसने तीर मारा और एक क्रौंच की मौत हो गई। मतलब एक पक्षी का इतना सम्मान है हमारे धर्म में, सनातन धर्म में, कि उसके लिए वाल्मीकि ने श्राप दिया कि तुमने प्रेम में मोहित क्रौंच के जोड़े को मारा है तो तुम्हें कभी प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी। तो हम इतने हिंसात्मक हैं। उस दौर में अगर ये कह दिया जाए, अब सोचिए वाल्मीकि, अगर हम जाएं तो वाल्मीकि किस जाति से आए थे, लेकिन हमारे वो पूज्य हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, आप देख लीजिए। आप हिंदू मुस्लिम की बात कही जाती है, अब रस्थान जी की समाधि है वृंदावन में, गोकुल में, वहां पर हर हिंदू धर्म का अनुयायी जाता है, वहां पर उनको प्रणाम करता है, मत्था टेकता है। तो हमारी परंपरा में कहीं ये हिंदू मुस्लिम वाली बात है नहीं। जैसा कि आपने कहा कि जो चीजें हैं, जो पश्चिमी वर्ल्ड का नैरेटिव, जिनका टेम्पलेट है इतना फिक्स है कि अपना काम कर जाते हैं, उसी टेम्पलेट को हमें सबको मिलकर तोड़ना होगा। और सबसे बड़ी बात देखिए, तारीफ भी शत्रु की कर देनी चाहिए। हम शत्रु इसलिए करें क्योंकि हमारे देश को तोड़ना चाहते हैं, वो पढ़ते बहुत हैं। अवधेश जी, पता नहीं आपका म्यूट क्यों हो गया। जी अचानक से आवाज। जी, हाँ जी, हाँ, देखिए परेशानी ये है कि देखिए एक ऑथर है ऑनरे ट्रस्की, राइट, जिसने एक बुक लिखी थी अ हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब आप ये बताएं, उसको $60,000 मिले थे ये बुक लिखने के लिए, फॉर मिलाइनिंग इंडियन हिस्ट्री। नहीं, तो ये जो आप ऑड्री ट्रस्की है, मैं आपको बात बताऊं, ये जो औरंगजेब के ऊपर लिखते फिरती है, रटगर्स यूनिवर्सिटी ने उसको जो पोजीशन दिया, उसके साथ साथ यूएस गवर्नमेंट ने उसके $2 मिलियन का फंड दिया हुआ है। अब मैं कहता हूं बीजेपी वालों को, जाके अमेरिका से पूछिए, ये जहर जो खोल के बैठी है यहाँ पे, अपने बच्चे यहाँ पे 30,000 लोग जाके रटगर्स यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। आप बताइए इनको कि हम हमारे बच्चे नहीं भेजेंगे। मैं कहती हूँ बीजेपी, सपा, कांग्रेस, मैं इनसे नहीं कहूंगी, मैं आपसे और मुझसे कहूंगी। हमारी कई ज्यादा संख्या है बीजेपी के कुछ गिने चुने लोगों से। हम क्यों नहीं शोर मचाते? हम क्यों इंडिपेंडेंट हैं उनके ऊपर? हमें शोर मचाना चाहिए एज एन सिटीजन ऑफ इंडिया। हमें इस प्रकार की जो ऑनलाइन पिटिशन यहाँ वहां से चलते आ रहे हैं, हम यहाँ से क्यों नहीं पार्टिसिपेट करते? सबके हाथों में स्मार्टफोन है, सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक्टिव पार्टिसिपेशन की रिक्वायरमेंट है। अब मैं आती हूँ सॉल्यूशंस के ऊपर। सॉल्यूशन क्या है? पहले तो हमें अपना मीडिया सेटअप क्रिएट करना पड़ेगा जिस प्रकार से उन्होंने किया हुआ है। हम समझ रहे हैं कि वर्षों पूर्व से वो कार्य करते आ रहे हैं, इस पे समय हमारे पास कम है, लेकिन
उस छोटे ही समय में हमें एक इफेक्टिव मीडिया बनाना पड़ेगा, एक अपने लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा। सेकंड थिंग है कि हमें स्कॉलर्स बिठाने पड़ेंगे, जो स्कॉलर्स अपने हमारे ज्ञान के विषय में, हमारी हिस्ट्री के विषय में अच्छी पूर्णता जानते हो, जानकारी रखते हो, और हमारी हिस्ट्री के विषय में वो उनका रेफरेंस लेकर के ना पढ़ें, क्योंकि हमारी हिस्ट्री तो तभी मलाइन हो गई थी जब इन्होंने ट्रांसलेशन किया था हमारी हिस्ट्री का। जब इन्होंने रामायण का ट्रांसलेशन किया, जब इन्होंने महाभारत का ट्रांसलेशन किया, उसी दिन उसके अंदर कौन कौन सी विविधताएं ला करके डाल दी, क्या क्या मिला दिया, हमें अभी भी ज्ञात नहीं है और हम उसको पढ़ते हैं। तो जब तक हम परफेक्टली उसको नहीं पढ़ेंगे, जब तक हम उसे जानेंगे नहीं, उसको प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। इसके लिए सेट ऑफ पीपल वी हैव टू कीप इन इंडिया और समवेयर लाइक डिफरेंट प्लेसेस, जो अच्छे स्कॉलर्स हैं उनको एकत्रित करना पड़ेगा, जो हिस्ट्री को जोग्राफिकली प्रेजेंट कर पाए। क्योंकि हिस्ट्री किसकी होती है? हिस्ट्री एक क्षेत्र की होती है, एक राष्ट्र की होती है। राष्ट्र क्या है? राष्ट्र एक भौगोलिक पटल पे एक एक स्पेस है जहाँ पे किसी राष्ट्र को निहित है कि यहाँ पे है। तो उस रीजन की हिस्ट्री, उस उसका कल्चर एक प्लेस से रिलेटेड है, उसको हम हिस्ट्री को जब ज्योग्राफी के साथ प्रेजेंट करेंगे तभी हम तथ्यात्मक बात कर पाएंगे। दूसरा कि नैरेटिव बिल्डर्स की एक टीम होनी चाहिए, जिस प्रकार से ये कार्य करते हैं कि वो नैरेटिव सेट करे। और नैरेटिव, जैसे हम जब सत्य की बात करेंगे तो नैरेटिव सेट करने की बात ही नहीं आएगी। जैसे मैं आज कहती हूँ कि मोहम्मद जो है वो मक्का में जन्मे थे, और भारत के रहने वाले प्रत्येक जो मुसलमान है वो इस्लाम के अनुयायी है, वो मुसलमान नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो तुर्क या फिर अरब कंट्री से बाहर पैदा हुआ है, वो सिर्फ मात्र इस्लाम का अनुयायी ही हो सकता है, वो सच्चा मुसलमान नहीं हो सकता, वो कन्वर्टेड मुसलमान है। भारत के अंदर औरंगजेब से 2-2 और 4-4 आने ले करके कन्वर्ट होने वाले या डर के कन्वर्ट होने वाले आज किसी उस रेपिस्ट कल्चर वाले इस्लाम के लोगों को कहते हैं कि वो जो है वो हमने इस देश पे राज किया है। मूर्खों, तुमने इस देश पे राज नहीं किया, तुम हमारी स्त्रियों को ही हरम में रखा गया था और उनसे मिलिशियस जो आउटकम है वो तुम लोग हो। दैट इज व्हाट यू हैव बिकम, राइट? एंड देन यू आर सेइंग दैट यू नो वी आर द एंसेस्टर ऑफ किंगडम। हाउ कैन यू से दैट? दे आर नॉट एंसेस्टर्स ऑफ द किंग्स। तो ये सारी चीजें ये कब क्लियर होंगी? किसी हमारे बच्चों को नहीं मालूम है कि हरम क्या था, हमारे बच्चा पढ़ता ही नहीं है। वो उसको तो बताया जाता है द ग्रेट अकबर, उसको नहीं बताया जाता द ग्रेट चोला, द ग्रेट अशोका, द ग्रेट चाणक्य, नहीं पढ़ाया जाता है। एक चीज मैं और ऐड कर तो हाँ, अवधेश जी आप ऐड कीजिए और मैं लोगों से सवाल लूंगा। आई नो वी आर, हमारे 15 मिनट प्रोग्राम से चले गए थे, सो आई बोरोड 5 मिनट्स फ्रॉम अदर प्रोग्राम्स टाइम। सो गो अहेड अवधेश जी, गो अहेड। चीजें मैंने सोशल मीडिया पर कैंपेन देखा कुछ दिन पहले कि ये वहां पर स्थापित करने की कोशिश की जा रही थी जिसको हम बोलते हैं अग्नि परीक्षा सीता जी की। तो अग्नि परीक्षा तो ठीक है, आप उस पर सवाल उठा लीजिए, लेकिन अग्नि परीक्षा को उन्होंने वर्जिनिटी टेस्ट का नाम दे दिया कि वो टेस्ट हुआ। तो उस पर बड़ा झगड़ा हुआ सोशल मीडिया पे। हालांकि उनका गैंग इतना बड़ा कि आप भिड़ते रहिए। तो सोचिए इस तरीके से नैरेटिव बिल्डर। और एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा, स्वामी पंचानंद है जो गुवाहाटी में कामाख्या पीठ है उसके पीठाधीश्वर। एक बार उनसे मैंने कुंभ में सवाल किया कि बताइए कि कुंभ आपका हर 3 साल में लगता है एक जगह, सनातन धर्म की हालत इतनी क्यों खराब है? उन्होंने कहा मैं बताता हूँ, जो सिख हैं, सिख समुदाय है, अपने बच्चों को पढ़ाता लिखाता है, अच्छी शिक्षा देता है, लेकिन ये बताता है कि बेटा अगर तुम्हें जब धर्म की बात आ जाए तो कटार जरूर चलाना, क्योंकि धर्म सर्वोपरि है। इस्लाम की बात आ जाए, ये कहा जाता है कि पढ़ो लिखो, दुनिया में आगे बढ़ो, नाम करो, लेकिन अगर धर्म की बात आए तो जिहाद कर देना। लेकिन आप क्या करते हैं? आपका बच्चा घर में खेल रहा होता है, अगर बाहर जाने की जिद करे तो आप कहते हैं बेटा बाहर मत जाना, बाबा उठा ले जाएगा। तो आपने अपने बाबा को पहले बता दिया कि बाबा आपका चोर है। तो जब आप अपने धर्म और धर्म धुरंधरों को चोर बता रहे हैं तो आपका धर्म किसी कीमत पर नहीं बचेगा। तो हमें बच्चों को और अपनी पीढ़ी को सम्मान सिखाना होगा। और ये जो अग्नि परीक्षा को वर्जिनिटी टेस्ट का जो लोग नाम दे रहे हैं, जो नैरेटिव क्रिएट हो रहे हैं, इस पर बड़ी पैनी नजर रख के इनका खंडन करना पड़ेगा, वरना स्थिति आपे से बाहर हो जाए। बिल्कुल। सो लेट अस टेक सम क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑडियंस। 5 ही मिनट बचे हैं। सो एक क्वेश्चन है कि इंडियन गवर्नमेंट क्यों नहीं एक्ट करती है? सो टेक दैट जिया। जी देखिए, इंडियन गवर्नमेंट एक सेट ऑफ फोरम और सेट ऑफ प्रोसेस से काम करती आ रही है बहुत पहले से, जो कि डिसाइडेड है। पिछले कई वर्षों से जो एक पद्धति चली आ रही है उस मॉनिटरिंग को तोड़ने के लिए थोड़ा समय लग रहा है। लेकिन मैंने देखा है कि कुछ समय से इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे काम किए हैं। और डेफिनेटली शिक्षा के क्षेत्र में इंडियन गवर्नमेंट को समरसता और समानता की बात करनी पड़ेगी। अगर आप मदरसे को फंड दे रहे हो तो गुरुकुल को भी फंड दो। अगर आप कुरान को पढ़ने के लिए सही बता रहे हो तो आप फिर शास्त्र भी पढ़ने के लिए हमें अनुमति दो। हमें अनुमति की अपने ही देश में अपने ही ग्रंथ पढ़ने की अनुमति क्यों चाहिए?
तो इस विषय पे हमें चर्चा करनी पड़ेगी, इस विषय पे काम करना पड़ेगा। तो अवधेश जी, हर एक कंट्री में जो भी प्रो उस कंट्री होता है, आखिर कटार एयरवेज अल जजीरा को पैसा देती है। अल जजीरा पूरे विश्व में अपना प्रोपेगेंडा करती है, और पता है कटार एयरवेज का सबसे बड़ा फंडर कौन है? हम खुद भारतीय वासी। उनका कटार एयरवेज सबसे ज्यादा अपने लोग चढ़ते हैं, और वो जाके अपने इंडिया के खिलाफ ही प्रोपेगेंडा करते हैं। ये इंडियन गवर्नमेंट क्यों नहीं करती है? यानी स्टेट गवर्नमेंट, आपके योगी जी हो या कोई और हो, मोदी जी हो, ये क्यों नहीं करते हैं? डरते हैं क्या? नहीं, डरते तो नहीं है, लेकिन देखिए जब आप एक देश को चलाते हैं तो बहुत सारी बाध्यताएं होती हैं। जैसे जो लोग उटपटांग बोलते हैं, जब तक कानून व्यवस्था न बिगड़ जाए तब तक किसी कानून का उल्लंघन नहीं, क्योंकि उनकी अभिव्यक्ति हो, भले ही उल्टा बोलें, वहां पर समस्या आ जाती है। कोई अगर एयरलाइन पूरे विश्व में काम कर रही है तो उस पर आप जो बंदिश है, किसी तरीके की बंदिश आप नियमों के दायरे में रहकर ही लगा सकते हैं, जो बड़ा मुश्किल हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका सबसे अच्छा इलाज सरकार न होकर समाज है। आप देखिए, जैसे आमिर खान ने एक मंच पर कहा था कि उनकी पत्नी को भारत में डर लगता है। क्या शानदार जवाब भारतीयों ने दिया। स्नैपडील लोगों ने इस्तेमाल करना बंद कर दिया, और वो हालत हुई कि स्नैपडील को आमिर खान से अपने जो एम्बेसडर बनाया था उसको वापस लेना पड़ा। और इतना ही नहीं, तमाम जो ब्रांड एंडोर्समेंट थे वो चले गए, और उसके बाद से उनको डर लगना बंद हो गया। तो कुछ जैसे जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़ी संस्थाएं, चाहे कतर एयरवेज, चाहे तमाम चीजें हों, अब देखिए चाइना से हमारा इतना मामला चल रहा है गड़बड़, लेकिन हम व्यापार नहीं बंद कर सकते, क्योंकि वो हमारी जरूरत है, हम उनकी जरूरत है। दवाइयों का जो रॉ मटेरियल है बहुत बड़ी मात्रा में वहां से हमारे पास आ रहा है। तो वो चीज तो सरकार के स्तर पर बहुत ज्यादा संभव नहीं हो पाती। इसकी जिम्मेदारी समाज को लेनी होगी, देश के लोगों को लेनी होगी, क्योंकि कोई अगर उल्टा बोल रहा है तो वो उसकी व्यक्ति की स्वतंत्रता हो गई, वो संवैधानिक संरक्षण उसको मिला हुआ है जब तक बवाल ना हो जाए। और कतर एयरवेज किसको फंड कर रही है, वो मसला भारत सरकार उस पर एक्शन तब तक नहीं ले सकती जब तक कि खुले सबूत ना आ जाए कि उन्होंने भारत में कोई बड़ा कांड कर दिया। तो ये एक प्रशासनिक मजबूरी है। बिल्कुल अवधेश जी, एक्सेलेंट पॉइंट्स। ये as always exciting talking to both of you. I wish, मैं चाहता हूँ ऐसे सेशंस और हों ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए, जो पब्लिक भी ये जाने कि हमारी जो सीमाएं हैं, हमारी जो फ्रेमवर्क्स हैं, उसको उसके अंदर ही हम वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट टू प्रोटेक्ट हिंदू धर्मा, प्रोजेक्ट इंडिया पॉजिटिवली। और बाहर रह के हम तो, मैं कहता हूँ, मैं अपने लोगों को कहता हूँ कि ये अज्ञातवास में भी हमने whatever little possible, क्योंकि ये ऐसा कंट्री कोई दूध का धुला नहीं है जिसमें से हम बात कर रहे हैं, राइट? यहाँ पे भी इतना एजेंडा इंडिया के खिलाफ किया जाता है। दुख यही होता है कि इंडिया में बैठे लोग सोचते हैं कि अरे अमेरिका चले गए तो वहां पे राज कर रहे होंगे। नहीं भाई, यहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेशन हमारे खिलाफ बहुत होता है, फिर भी हम झंडा लेके, ये इंडिया फ्लैग यहीं पे पड़ा है। यही आज मैं गया था प्रोटेस्ट करने के लिए। दिस इज व्हाट वी डू। बट क्या करें, रिसोर्सेस इससे ज्यादा कहां से मिले हमको, राइट? वी आर डूइंग आवर बेस्ट। नया इंडिया जब उभर के इकोनॉमिक सुपर पावर भी होगा, तब ये ऐसे रिसोर्सेस और भी जुड़ेंगे, और अवधेश जी से जैसे लोग और उन्नति में जाएं, मंजरी जैसे लोग और प्रोग्रेसिवली अपना थॉट्स एक्सप्रेस कर पाएं। ये जो 70 प्रमोद इयर्स जी, का हमारे मैं ऊपर 2 जो ये सेकंड था। लूंगी और एक बात कहना चाहूंगी कि देखिए, हाँ, आप हम हमारे यहाँ बदलाव तभी आएगा। पहली बात कि हमें कंसंट्रेट करना है आत्मनिर्भर बनने के लिए। हमें नौकरशाही जो चल रही है, जो उससे निकल करके सोचना पड़ेगा तब। पहला। दूसरा, हमें 8 साल से 16 साल के बच्चों के अंदर संस्कार और विद्या, संपूर्ण विद्या देनी पड़ेगी। आर्थिक, सामाजिक और नैतिक और हिस्ट्री से रिलेटेड सारी ज्ञान देना पड़ेगा, जिससे वो जाने और अपने शास्त्रों को समझें और अपने इतिहास को समझें। तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। यदि आपको अपना ही भान नहीं है कि आप क्या हैं, तो आप कुछ नहीं कर सकते। वंडरफुल, थैंक यू। ऑन दैट नोट, लेट अस एंड, लेट अस होप एंड प्रे। जिन लोगों ने 9/11 में अपना जो सैक्रिफाइस उनको करना पड़ा, बाद में 20 साल तक जो टेररिज्म के खिलाफ, अमेरिकन सोल्जर हो, इजरायली सोल्जर हो, इंडियन सोल्जर हो, जिसने भी अपनी जान टेररिज्म के खिलाफ लड़ते गंवाया, उन सब की आत्मा को शांति पहुंचे, और हम अपने भारतीय मूल्य और संप्रदाय को we will continue to project it till the last breath. उसका हम प्रण लेते हैं, and we'll end this session. Thank you so much. Thanks so much for joining it. सादर धन्यवाद आपका। भारत माता की जय। भारत माता की